Hello. Now I'm explaining relative reference and absolute reference. This is very important topic. Previous lectures we have seen it like alignment, copy, paste, formula, how formula will work, how alignment will work, orientation. So this is very important topic, relative cell reference and absolute cell reference. So relative cell reference is one that when copy from one position to another position in a worksheet will change the cell address automatically to suit the position. Automatically वो cell की value change हो जाएगी. For example, if the formula is A3 equals to A1 plus A2, then we copy the formula from A3 to B3. Excel automatically changes the reference to the match location cell B1, B3. This is the default in Excel. मैं example explain करता हूँ. For example, here I am writing it equals to sum function. I am performing it. Simple bracket start, give two location and ending it. When I sum it, when I press enter, it will sum it 1400. That means cell reference is B D30 and E30. ये cell reference है. Now when I will copy it, जब मैं इसको copy करता हूँ तो जस्ट आई एम ड्रैगिंग इट. आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हो. नाउ जस्ट सी इट. सम D1 E3 D3 E3, सम D3 E1 E3 1, सम D2 E3 2, सम D3 E3. ये एज इट इज कॉपी हो गया. नाउ एज इट इज कॉपी, नो चेंजेस, नो नथिंग. दैट मीन्स both the cell will change it, starting cell and ending cell, both the cell will change it. That is called relative reference. ये relative reference कहलाता है. इसमें आप कॉपी करते हो फार्मूला की, सेल की, अदर रेफरेंस की, ये सारी चीजों की. नाउ the thing is that same case absolute reference का आता है. Absolute reference is something different. हम उसको चेक करते हैं और देखते हैं. So absolute reference, to make absolute reference of a formula, an example of reference, absolute reference, let us take example of initiative rate. Dollar sign we put it, shortcut F4, dollar A or $1 plus dollar A $2 is an example of absolute reference. इसको हम अगर ऐसा बोलें कि the address of a cell is made up by putting a dollar sign before both the column and row number. इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, if a formula is copied to a different location, if a formula is copied to a different location, the absolute reference remains the same. Put a dollar sign, put a dollar sign on column and row. रो और कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं. अब मैं उसका एग्जांपल बताता हूं आपको. सिंपल मैंने यहां जो बताया, यही मैं आपको ये रिलेटिव रेफरेंस का एग्जांपल दिया. रिलेटिव सेल रेफरेंस,
अब मैं आपको यहाँ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल बताता हूँ। रैप टेक्स्ट कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, फोन साइज बिगर कर दी 14, और आप जब इसको देखेंगे तो ये भी मैंने आपको एक जैसा लगेगा ये, जस्ट सी इट। नाउ द थिंग इज सेम। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर परफॉर्मिंग, लिसन वेरी केयरफुली, वी वांट टू परफॉर्म, इसका हम 10% निकाल रहे हैं, इसका 10%। तो अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस हम यहां नहीं लेते हुए, हम यहां लेंगे, यहां पे रिलेटिव ही रहेगा। बताता हूं कैसे, हाउ वी परफॉर्म इट। जस्ट सी इट इक्वल्स टू इसका 10%, इंटर। अब 200 का 10% 20, क्लियर, इट इज राइट, यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट, यू नो इट वेरी वेल। अब now I copy it, I am copying the thing. Now the thing is that here error comes, here it is different thing, here is different thing. अब परफॉर्म कैसे होना था, दिस सेल इंटू 10/100 तो ये आ गया, दिस सेल इंटू 10/100 तो ये आया। अब इसका आप देखो फार्मूला क्या चेंज हुआ, यहां जो फार्मूला था, द फार्मूला इज 10E30 1030E28, हियर द फार्मूला इज चेंजेस D31, ठीक है, D31 इज फाइन, बट here the cell reference is 10%, that means E28 ही रहना थी। now the cell is changed E29, this cell, so that's why it will generate the error, ये एरर आई। फिर अब इसमें देखें हम, मतलब हमको होना ये था कि D31 इंटू E28, यहां पर क्या फॉर्मूला था, D30 इंटू E28, यहां पर होना था D31 इंटू E28, सेम यहां भी यही होना था। अब यहां क्या हुआ, D32 इंटू E30, D32 ये तो सही है, पर इंटू E30 ये हो गया, तो दिस विल रॉन्ग। भाई आप 300 का 10% निकालोगे तो 30 आना चाहिए, तो वो उसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। सेम थिंग D33 इंटू E28 होना था, बट वो उसका आंसर E31, तो इट विल टेक मल्टीप्लाई, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस विल कॉपी इट अकॉर्डिंगली, वो उसकी वैल्यू कॉपी कर देता है। अब हम यहां समझते हैं वही की वही चीज, जस्ट सी वेरी केयरफुली, इसकी वैल्यू तो इक्वल्स, पुट इट इक्वल साइंस, ये इनटू 10%। अब 10% जब आप रख रहे हो तो मैंने F4 प्रेस करा, आई हैव प्रेस F4। F4 में क्या होता है, डॉलर, पुट इट डॉलर साइन बिफोर दैट एंड पुट इट डॉलर साइन फॉर 28, E stands for column, 28 stands for row, E stands for column, 28 stands for row। तो रो और कॉलम फ्रीज होगा, फ्रीज होगा मतलब द वैल्यू विल नॉट चेंज व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला। जब इस फॉर्मूला को आप कॉपी करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, और वैल्यू चेंज नहीं होगी तो जब हम एंटर करते हैं तो इसका 10%, ये तो करेक्ट है, बोले आपका ये और ये, व्हेन यू कॉपी इट तो अब D31 इंटू E28 वही होना चाहिए। अब आप कॉपी करो, देखो सेम, इसका फॉर्मूला D30E28, नाउ D31E28, ये सेल सही हुई, E28 फिक्स हो गई। व्हेन यू वांट टू फिक्स द सेल row wise as well as column wise, that time you can put a dollar sign and value will not change accordingly when you copy the formula। जब आप फॉर्मूले को कॉपी करते हो तो सेल की रेफरेंस चेंज नहीं होगी। अब यहां भी चेंज नहीं हुई, E28 फिक्स हो गई, और आप देखो हर उसका 10% निकला, 200 का 10% 20, 10 का 10, 100 का 10% 10, 300 का 10% 30, 200 250 का 10% 25। ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जब आप दोनों जगह डॉलर साइन यूज करते हो, डॉलर साइन,
जैसे ये अब अपन ने यहां लिया, इसी सेल को रेफरेंस लें तो $28। अब ये इसको कॉलम और रो दोनों चेंज होंगे, है ना। अब अगर आपने $, और 28 लिखा तो रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपी, इसमें रो चेंज नहीं होगी, रो नॉट चेंज। और इसमें रो और कॉलम नॉट चेंज। फिर $28, कॉलम नॉट चेंज। कॉलम चेंज नहीं होगा, मतलब मैंने आपको फिक्स तरीका बता दिया, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। इट कैन बी प्रीसीड द कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस और बोथ। प्रीसीड मतलब पहले आप कहीं भी लगा सकते हो, और मैंने आपको ये इसका एग्जाम्पल भी बताया, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से एग्जाम्पल बताया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस आप इस पे देख पा रहे हैं तो एक ही उस पे दिख रही है। Now in a single screen just see it, ये सिंगल स्क्रीन, ये तो this is the thing, relative reference and absolute cell reference. I think you have clear the thing, clear the function. और कई जगह ऐसा होता है मिक्स सेल रेफरेंस भी बोला जाता है। मिक्स सेल रेफरेंस मतलब दोनों, तो वो दोनों में जहां $साइन लगाएंगे वो पुट करेगा, दोनों जगह लग गया मतलब मिक्स सेल रेफरेंस, इसी को मिक्स सेल रेफरेंस बोलेंगे। रो चेंज हो रही है, रो चेंज नहीं हो रही है, कॉलम चेंज हो रहा है तो मिक्स्ड। यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, रो नहीं हो रही तो कॉलम चेंज नहीं हो रहा तो ये मिक्स्ड है ना। नाउ नेक्स्ट इज, जब हम बात करते तो इनबिल्ट फंक्शंस वी हैव सम seen it, count seen it, average we have seen it, maximum we have seen, so n number of things we have seen it. अब हम बात करें तो चार्ट की हम डिस्कस कर सकते हैं, चार्ट अलग अलग। तो चार्ट में काफी सारी चीजें हैं। तो चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं, चार्ट बना सकते हैं। इसमें हम शॉर्ट में हम इसको कॉपी करते हैं, ये रीनेम कर रहे हैं। हाउ टू रीनेम द शीट, ये इस तरह से रीनेम करते हैं, पुट इट राइट क्लिक और चार्ट, गो टू इंसर्ट। अब इस तरह से हम सब्जेक्ट 1 का चार्ट, जैसे ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये एक हम चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ट, चार्ट क्या होते हैं? तो चार्ट बेसिकली एक्सेल में विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वर्कशीट को देखने का। चार्ट्स are visual representation of worksheet data.
वर्कशीट डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है वर्चुअल। इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है, किसी चीज को एनालाइज करना। अब इससे क्या कर सकते हो आप, चार्ट से चार्ट्स हेल्प ए यूजर टू इजीली अंडरस्टैंड एनालाइज एंड कंपेयर द डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनालाइज एंड कंपेयर डेटा। अब आप देखते हो तो किस किस चीज का, किस चार्ट का क्या यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देयर आर वेराइटी ऑफ चार्ट्स आर देयर, जस्ट सी इट। कॉलम चार्ट, कॉलम की भी वेराइटी, अलग अलग कॉलम के कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन, दिस। लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एनी ऑफ द चार्ट यू कैन यूज इट। पाई चार्ट, ये पाई। फिर बार चार्ट, ये बार चार्ट। एरिया चार्ट, स्केटर चार्ट, आपको जो चार्ट यूज करना हो आप देख सकते हो। पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्केटर चार्ट, एक्स वाई लिया, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डॉटनेट चार्ट, टफनेट, बबल चार्ट, रॉडार चार्ट। दीज आर द चार्ट। और चार्ट में कंपैरिजन करना है और एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। अब चार्ट में ये तो मैंने बताया आपको, सिंपल कॉलम चार्ट। अब जो भी, ये तो कॉलम बन गया बाय डिफॉल्ट। अब आप फर्स्ट यू सिलेक्ट द डेटा, डेटा को सिलेक्ट करना होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलम चार्ट देख रहे हैं। कॉलम चार्ट क्या होता है? कॉलम चार्ट आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यू अक्रॉस कैटेगरी। आप देख रहे हो उस पर, जब भी कोई कैटेगरीज वाइज आपको वैल्यू चेक करना हो तो कॉलम चार्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। अब हम इसका कॉलम चार्ट ले रहे हैं इसी चीज का, तो आप देखेंगे कि ये लिया मैंने एंड आई हैव कंपेयर वैल्यू अक्रॉस कैटेगरी बाय यूजिंग वर्टिकल रेक्टेंगल। वर्टिकल रेक्टेंगल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको हटा रहा हूं। आप देखोगे तो अभी इंसर्ट ऑप्शन है, उसके बाद व्यू के बाद कोई ऑप्शन नहीं। देयर आर नो अदर ऑप्शंस इज शोइंग इट। व्हेन यू क्रिएट चार्ट, जब आप चार्ट क्रिएट करते हो तो the three options automatically displayed: design, layout, format. Design means whatever design you want to choose it. This one, this one, this one, this one, whatever. Number one. Number two, if you want to move chart, you can move it. आपको किसी और जगह लेना, नई शीट में लेना तो नई में कर सकते हो। सेम ऑब्जेक्टिव मतलब सेम, न्यू शीट अलग, कैंसल इट, आई एम नॉट मूविंग इट। इसको अगर टेम्पलेट्स के फॉर्म में सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। टेम्पलेट्स एक स्पेसिफिक फिक्स फॉर्मेट होता है। मान लो आप चार्ट आपने गलत चूज कर लिया, डेटा यही है, सो ऑप्शन इज डिजाइन कॉलम चार्ट, जो भी आपको लेना है। सपोज आपको ये लेना तो ये ले सकते हो, ये लेना तो ये ले सकते हो। यू कैन चेंज, इवन यू कैन ऑल्सो टाइप ऑफ द चार्ट ऑल्सो चेंज इट। सेम कॉलम चार्ट में भी अलग अलग वेराइटी यूज कर सकते हो, एंड द लाइन चार्ट ऑल्सो यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज आर देयर। नेक्स्ट, रो कॉलम। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में स्विच करना, एक साथ बता रहा है ये कंपैरिजन। ये साइड में आप देखो लीजेंड चेंज हो रहा है। सिलेक्ट डेटा, डेटा को सिलेक्ट करना, तो डेटा हमारा यही था। मान लो आपको चेंज करना हो तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। फिर आगे बात करें हम लेआउट की। Now there are n number of things are there. I am explaining it. First, chart title, chart access title, legend, data labels, data tables. One important thing, very important, when you are applying this, chart should be selected. If chart is not selected, option will not enable it.
नाउ ऑप्शन विल रिमूव फ्रॉम रिबन टैब. रिबन टैब से वो ऑप्शन रिमूव हो गए. जस्ट क्लिक इट, डिजाइन लेआउट फॉर्मेट. आई एम एक्सप्लेनिंग लेआउट. लेआउट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. अब चार्ट टाइटल. फर्स्ट, what is the meaning of title? The title means the title of the chart always shows at the top, number 1. ये top पे show होता है. Title giving is not compulsory, but if you want to give, अगर आप देते हो तो that will be very helpful. Number 1. Now I'm giving it chart title. There are 3 options will display. Above the chart already दिया हुआ है. Center delete title, ये center. और अबाउ द चार्ट अगर आप बोलते हैं तो ये अबाउ द चार्ट. चार्ट बन गया. उसके बाद एंड नन, इफ यू वांट टू सिलेक्ट नन, इट विल नॉट डिस्प्ले. रिमूव इट. लीजेंड के अकॉर्डिंग आ गया. नाउ अबाउ द चार्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, और वो मैथ्स के सब्जेक्ट्स उसके अकॉर्डिंग बता रहा है. मीत के, राज के, सीता के, गीता के. 4 ऑप्शंस. कंपेरेटिव वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू लेफ्ट साइड, नेम शोइंग दिस साइड. तो y और x एक्सेस दूसरे दोनों अकॉर्डिंग में काम करता है. अब एक्सेस टाइटल की बात करें. देयर आर 2 एक्सेस, x एक्सेस एंड y एक्सेस, और वी कैन से हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड वर्टिकल एक्सेस. अब हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आपको ऑप्शन देना है. यहां हम दे सकते हैं नेम टाइटल. नेम. इसकी साइज अगर आपको बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज द साइज. नेम टाइटल शोइंग एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. बॉटम स्क्रीन की बॉटम में शो हो रहा है. फिर आपको वर्टिकल अगर रखना है, वर्टिकल. अब देखो हॉरिजॉन्टल में भी आपके नन और बिलो 2 ऑप्शन. नन, रोटेट टाइटल, वर्टिकल टाइटल, हॉरिजॉन्टल टाइटल. हॉरिजॉन्टल टाइटल दे देते हैं. यहां हमारे मार्क्स थे. हॉरिजॉन्टल टाइटल ऐसा आया. मान लो आपको वर्टिकल टाइटल देना है तो वर्टिकल ऐसा आएगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस, वर्टिकल टाइटल और हॉरिजॉन्टल टाइटल. ये मीनिंग है इसमें. फिर रोटेट टाइटल. अभी रोटेट करना है तो रोटेट हो सकता है. कंट्रोल Z, पुट इट. नाउ नेक्स्ट इज लीजेंड. शो लीजेंड राइट. तो ये राइट में ऑलरेडी है. दिस इज द लीजेंड. लीजेंड मीन्स वॉट एवर कलर यू आर यूजिंग एंड फॉर टाइटल इट विल डिस्प्ले इट. टॉप पे करना तो टॉप पे. वैसे नॉर्मली आप देखो लीजेंड ऑलवेज शोज राइट साइड. ये लेफ्ट, but legend always remember it right side. That is the default, and if you are thinking it will display on the other side, you can display it as per your requirement. आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सेट होना चाहिए लीजेंड. नाउ लेबल. नन, लेबल नन. सेंटर, ये लेबल सेंटर पे दिख रहा है. दिस इज द लेबल विच शोइंग इट सेंटर. सेंटर पे दिख रहा है. इनसाइड, आउटसाइड. आउटसाइड ऊपर. नेक्स्ट लेबल. लेबल अब वी हैव सीन इट. नाउ टेबल्स. शो टेबल्स. द टेबल विल शो इट. टेबल शो हो जाती है. नन, नॉट, शो. शो टेबल विथ लीजेंड की, लीजेंड की के साथ शो. ये देखो लीजेंड की. एवरीथिंग 29, 29, 45, 45. बिलो शोइंग टेबल, अपर साइड, इनसाइड इट. ये वो कर रहा है. तो फिर नेक्स्ट ग्रिड लाइन. ग्रिड लाइन अब जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन मेजर ये ऑलरेडी है. ये ग्रिड लाइन है मेजर. वर्टिकल की चाहिए मेजर. ये वर्टिकल की ग्रिड लाइन आ गई.
माइनर चाहिए, माइनर आ गई, माइनर वर्टिकल की यहाँ चाहिए माइनर, तो माइनर आ गई, सारी जगह अवेलेबल है। बट नॉर्मली आप मेजर रखो तो ज़्यादा अच्छा है, और बाकी वर्टिकल यू कैन रिमूव इट, दिस विल डिस्प्ले इट। ये डिस्प्ले करता है और इसको बोलते हैं मेजर ग्रिड लाइन। प्लॉट एरिया नन और शो करेंगे तो ये शो हो जाएगा। ये एग्जैक्टली प्लॉट एरिया होता है ये पूरा, और इस पर आपको कोई भी चीज को डिस्प्ले करना हो तो कर सकते हो। नाउ द थिंग इज चार्ट टाइटल, गिविंग द टाइटल, सिलेक्शन ऑफ चार्ट इज कंपल्सरी, एक्सेस टाइटल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लीजेंड, 3 options, no, right side, top, left, bottom, right, left, label, these are the label, table, green line, एक्सेस में वो ये बताता है कि राइट साइड, सो लेफ्ट टू राइट एक्सेस, ये लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो ऑलवेज यूज लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट ये है, प्लॉट एरिया बता दिया। ट्रेड लाइन, ऑलवेज यूज इट, ट्रेड लाइन, ऐड ए ट्रेड लाइन टू द चार्ट, कि लाइन आपको शो करना है, लीनियर ट्रेड लाइन, ये लीनियर, so data is showing it now. Grid line, data labels, legend, data series, डेटा सीरीज तो हम है यूज जो कर रहे हैं, एक्सेस टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल शो करता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल शो करता है। चार्ट प्रिपेयर करना सेम शीट में, डिफरेंट शीट में, चार्ट के अलग अलग टाइप, चार्ट के टाइटल शोज, चार्ट के एलिमेंट, फॉर्मेट एलिमेंट, पिक्चर, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, लीजेंड, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, लेबल, टेबल, एक्सेस, ग्रिड लाइन, फॉर्मेटिंग, चार्ट को फॉर्मेट करना हो अलग अलग, जैसे फॉर्मेट ही करना हो आपको चार्ट को, अभी तो फॉर्मेट भी बचा है, ये फॉर्मेट, दिस शेप फिल करना हो, आउटलाइन फिट करना हो, इफेक्ट देना हो ग्लो का, दिस इज द इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड इफेक्ट। तो ये अलग अलग चीजों के अलग अलग इफेक्ट हैं और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो अब ये एक्सेल में ये मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, फॉर्मेट, अलाइन करना, ये आपके हाईलाइट हो जाएंगे ब्लू कलर में, ये स्टाइल्स भी आप ऑपरेट कर सकते हो, दिस टाइप ऑफ स्टाइल्स। सेम कलर में सेम कलर शो नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे मान लो अब ये कलर है तो इट विल नॉट हाईलाइटेड इट, सो द बेस्ट ऑप्शन यू कैन यूज इट अनदर कलर, ये, but instead of any applied clear word art, simple always use it, simple is sober, always show properly, और हर तरीके से वो प्रॉपरली दिखती है, हर तरीके से वो प्रॉपरली आती है, उस चीज को मेंशन करते हैं हम। तो अगेन एक्सेल, नाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट वी हैव सीन इट, it's a software to enter data, text, date. It is a performing horizontal row, vertical column, number of rows, number of columns, sheet, cell. These are the things which you have repeated number of times. Chart we have seen it, like home option we have seen it, insert option we have seen it, different charts, heading, page layout we have seen it, formula functions we have seen it, data, some of the things we have seen it. So n number of things we have performed it. In this video, 2 important things I have discussed it, chart and absolute and relative cell reference. That is very important for every time, है ना? And if you are applying formula, always put it equal sign. Auto sum function we have discussed it, auto sum function in sum, maximum, minimum, average, count, we can discuss it. Yes, 3 default sheets are there, 3 collection of sheet is called workbook. So workbook is a collection of 2 or more sheets. The file extension of Excel is .xls.
जो फाइल उसकी एक्सेल की बनती है आपकी, वो डॉट XLS एक्सटेंशन होता है सेव का। इसी को आप पीडीएफ में भी बना सकते हो। अगेन रिमेंबर इट व्हेन यू यूज इट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, तो आप इसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हो डायरेक्टली, इट इज नॉट चेंजेबल, दिस थिंग यू रिमेंबर इट। बाय डिफॉल्ट XLS डॉट XLS X होती है, और आप पीडीएफ में भी इसको सेव कर देंगे तो इट विल नॉट चेंज एंड सेंड इट। आपको लगता है कि कोई आपकी एक्सेल शीट को चेंज कर सकता है, सो यू कैन सेंड इट इन डॉट एक्सेल फॉर्मेट। इवन जो आपका डेटा होता है वो डॉट CSV फॉर्मेट में होता है। आप अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और एक्सेल जीमेल यूज करते हैं, तो जीमेल में आप डेटा आप एक्सपोर्ट करोगे तो डॉट CSV फॉर्मेट में होता है, जिसको आप ओपन करेंगे तो वही यूज होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। और अपने व्यूज जरूर देखें कमेंट दें। इफ वीडियो इज गुड, like it and forward it and subscribe it and send it to another one, so other person can also help this Excel video. Thanks for watching it. Thank you.